Assalamu alaikum. How are you people? I hope all of you are doing fine. Today we are going to study a topic of biotechnology. Some of my students have told me to upload some lectures on biotechnology, and we will be studying some of the major topics of biotechnology. In today's lecture, I'm going to start the concept of Sanger sequencing, which is one of the most commonly used methods of DNA sequencing. And Sanger sequencing, it has some specific steps. We will discuss the topic in 2 to 3 lectures. It won't be completed in one lecture. I will give you short videos and short lectures so that you can carry on with the main concepts. First of all, let me go to the whiteboard. Or first of all, let me introduce the topic and then we'll go to the whiteboard. Okay, right. DNA sequencing, what actually DNA sequencing is? DNA sequencing is carried out to understand gene functions, how the genes are going to work, how the genes are performing their duties, how the genes are located, what is the size of the genes, all these things we have to study, which are required in detailed study of genetics. So उसमें क्या है Sanger sequencing में we understand about these things. The detailed and exact sequences of the bases in the DNA is essential. Detailed and exact sequences of the bases. Bases आपके पास, what do you have? Which are the bases in DNA? We have 4 bases in DNA: adenine, guanine, cytosine, thymine. Adenine nucleotide, guanine nucleotide. How they are arranged? तो इनको भी हम स्टडी करते हैं क्योंकि आपको पता है even a single error in one location is going to bring about a very serious type of mutation. ठीक है, तो एग्जैक्ट सीक्वेंसेस, डिटेल सीक्वेंसेस की स्टडी में यस डीएनए सीक्वेंसिंग हम यूज करते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग, बेसिकली द वेरियस टाइप्स ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग, these processes have been developed on some basic points. First of all, what happens is different sizes of DNA are generated. All of them starting from the same point but ending at different points. Starting at the same point का मतलब ये है कि the nucleotide that is present at first position, that is at the position 3, is going to be the same in all of them for the same DNA. But what is the nucleotide which is terminating at the point 5? That one is going to be different. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट बट एंडिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स का ये मतलब है कि जब आप एक डीएनए को स्टडी कर रहे हैं तो उसकी जब हम क्लीवेज करते हैं तो उसका स्टार्ट पॉइंट वही है, वो 3 है, लेकिन उसकी क्लीवेज जब हम करते हैं तो वो डिफरेंट पॉइंट्स पे जब क्लीवेज उसकी होती है तो एंड पॉइंट उसका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. एंड सम ऑफ देम आर स्मॉल, सम ऑफ देम आर लार्ज. तो इस वजह से जो है ना डिफरेंट साइजेस में वेरिएशन जो है वो आती है. फिर हमने डिफरेंट साइजेस बना लिए हैं डीएनए के. देन सेपरेशन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. 2 मेजर टाइप्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दैट आर बीइंग कैरीड ऑन. आपके पास जो है वो एगार मीडियम में भी हो रहा है एंड पॉलीएक्राइलामाइड जेल जो है उसके अंदर भी हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट. After separation, the next step is reading of the sequence from the gel. Now, any of the DNA sequencing procedure that we are going to study, no matter whatever the detail of the procedure, they are basically going to run around. They are going to be designed around these 3 points. The first step of every DNA sequencing is going to be focused on generating different sizes of the DNA fragments. The second is going to be focused on separation of these different sizes segments by a various kinds of gel electrophoresis. We have capillary array also, and we have water bath also. Okay, here we have different types of gel also. Then reading of the sequence from the gel. The 2 main methods that we will study in our syllabus are the Sanger method and the Maxim-Gilbert method. And Sanger method जो है इसकी हम बहुत ज़्यादा डिटेल जो है उसको हम देखेंगे थोड़ा सा. ठीक है. Okay, now let us start with the Sanger method. Sanger method, इसमें क्या चीज है हम ये देखते हैं कि the principle of Sanger method, it is focused on generally the basic principle of DNA replication that is taking place inside our nucleus. बिल्कुल उसी बेसिस के ऊपर Sanger method जो है इसका पूरे का पूरा प्रोसीजर जो है it has been designed.
Who developed the Sanger method? Frederick Sanger and Andrew Colson ने 1977 में इन्होंने इसको प्रैक्टिकली प्रूव भी किया था और इन्होंने दे ऑल्सो डेवलप्ड द Sanger method. अब Sanger method के मेन स्टेप्स क्या हैं? First of all, denaturing of the DNA. हम इनकी सबकी डिटेल करेंगे. Today I am just going to introduce the Sanger method. First of all, denaturing of the DNA. Denaturing of DNA का मतलब होता है separation of the two double-stranded DNA by application of heat. ठीक है? Denaturing of DNA and producing single-stranded DNA. And each of these DNAs are going to act as settlement. They are going to be tagged at the 3 end. ठीक है? Then they are going to be tagged at the 3 end with what? With a complementary primer. A complementary primer is actually an oligonucleotide made up of 10 to 20 nucleotide sequences. Generally, it is prepared in the laboratory. And then after that, sequencing. इसके अंदर जो reagents हमारे पास मेन मटेरियल्स यूज होते हैं, आपके पास DNTPs हैं और DNA polymerase हैं. ठीक है, अब हम सबसे पहले जाते हैं टूवर्ड्स द होल प्रोसीजर ऑफ Sanger मेथड. Sanger मेथड का जो पूरा प्रोसीजर है उसको समझने के लिए आज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी द मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द Sanger सीक्वेंसिंग मेथड. एंड द मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द Sanger सीक्वेंसिंग मेथड, ये अब हम बोर्ड पे लिखते हैं. सबसे पहले तो ये है कि Sanger sequencing has been developed on the basis of DNA replication inside the natural body. ठीक है, एक तो ये चीज हो गई. अच्छा, नाउ एनी प्रोसीजर दैट यू राइटिंग इन बायोटेक्नोलॉजी या कोई भी और प्रोसेस आप लिख रहे हैं, आपको उसमें क्या करना है? आपको उसमें सबसे पहले उसकी टूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आप लिखें. जो उसके टूल्स हैं या उसके रिक्वायरमेंट्स हैं या वी कैन से उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में आपने बात करनी है. ध्यान से बात सुनिए. Now यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर we are going to talk about the tools and requirements of the Sanger sequencing method. Tools and requirements क्या हैं? इस लेक्चर में we are just going to discuss the basic requirements and the tools of the Sanger sequencing. ठीक है? In the next lecture, इन tools और इन requirements की डिटेल जो है वो हम स्टडी करेंगे. And then in the third lecture हम इसका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे. Sanger sequencing is going to be completed in 3 to 4 lectures. So today is just the introduction of the Sanger sequencing. ठीक है, tools and requirements में सबसे पहले तो आपको आपका DNA का जो सैंपल है जो कि अननोन है ये हमें चाहिए. ठीक है, DNA sample that is unknown ये हमें चाहिए. And this DNA sample that is unknown ये कहाँ से आया हमारे पास? ये मे बी अगर कोई क्राइम सीन है, क्राइम सीन से आया या किसी और क्राइम सीन से आया या फिर हम कोई अननोन कोई बैक्टीरिया है, कोई अननोन कोई एनिमल है, वहां से इसको हमने रिसीव किया है या जो भी हुआ है. ठीक है, वहां पर क्या है कि वहां पर हमने इसको वहां पर जो है वो इसको हम लोगों ने वहां से कलेक्ट किया है. अब उसकी हमने स्टडी करनी. एंड स्टडी उसकी हमने कैसे करनी है? स्टडी हमने उसकी करनी है बाय फाइंडिंग आउट द सीक्वेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन इट. एक चीज तो हो गई DNA सैंपल जो कि अननोन है. सेकंड क्या चीज है? सेकंड आपके जो है ना आपके प्राइमर्स हैं, द प्राइमर्स दैट वी आर गोइंग टू यूज. अब ये प्राइमर्स क्या चीज है? Primers are actually 10 to 20 nucleotides के बने हुए ये known sequences होते हैं. And these primers are used to tag the 3 end of the DNA template. ठीक है, they are used for tagging. और इन प्राइमर की अटैचमेंट से हमें पता चल जाता है कि स्टार्ट पॉइंट जो है वो क्या है. बिकॉज वी हैव वेरियस काइंड्स ऑफ प्राइमर्स एंड वी नो द सीक्वेंसेस बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड इनसाइड द लेबोरेटरी. अब एक चीज आप लोग जहन में रखिए कि यहाँ पर हमारे पास क्या है? हमारे पास यूजुअली वी यूज DNA प्राइमर्स बिकॉज दिस इज इन अ लेबोरेटरी सेटअप.
इन द लिविंग सेल इन विवो जो रेप्लिकेशन है उसमें आरएनए प्राइमर जो है वो नेचुरली आरएनए प्राइमर जो है वो अटैच होता है और फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो उसको निकाल के तो उसकी जगह जो है वो रेलेवेंट डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को फिट करता है। लेकिन यहाँ पर वी डू नॉट हैव दैट सीन, सो in most cases we use the DNA primers when we are doing in vitro DNA synthesis. Primers क्या हैं? Known sequences हैं 10 to 20 हैं, oligonucleotides हैं, and they are used to tag the three end of the template. अब template क्या चीज है? Template भी हमारे पास है। Template actually they are the separated strands of the DNA. These are known as the templates. Separated strand of the DNA. ठीक होगी बात? कितनी चीजें हमारे पास आ गई रिक्वायरमेंट? आज हमने ओनली रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है। 1 डीएनए सैंपल, 2 प्राइमर, 3 आपके पास आपका टेम्पलेट है, 4th हमारे पास क्या चीज आती है? 4th हमारे पास डीएनटीपीज है। डीएनटीपीज क्या हैं? डीएनटीपीज आर एक्चुअली द रेगुलर न्यूक्लियोटाइड्स दैट आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। डीऑक्सी जो एंटीपीज हैं आपकी आम डीऑक्सीराइबोस के साथ जो आपके एंटीपीज हैं वो आपके पास जो हैं वो यहाँ पर नॉर्मली प्रेजेंट है। ठीक है, डीएनटीपीज हैं। अब डीएनटीपीज के बाद आपके पास जो एक दूसरी चीज है वो क्या है? वो है आपके डीएनटीपीज, डाईडीऑक्सी एंटीपीज। नेक्स्ट लेक्चर में हमने डाईडीऑक्सी एंटीपीज और डीएनटीपीज का ओनली डिफरेंस डिस्कस करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाईडीऑक्सी एंटीपीज एंड डीएनटीपीज। डीएनटीपीज आर दोज न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच आर गोइंग टू टेक प्लेस इन द नॉर्मल सीक्वेंसिंग. And the DNTPs are those nucleotides which, when incorporated inside the normal sequencing, they are going to be they will terminate the sequencing. That is why Sanger sequencing is also known as the chain termination method. Sanger sequencing is, that is why it is also known as the chain termination method. ठीक हो गई बात? अच्छा, डीएनटीपीज हो गए, डीएनटीपीज हो गए। अब आपके पास एंजाइम कौन सा है? क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट, सो वी नीड एन एंजाइम व्हिच इज थर्मोस्टेबल। थर्मोस्टेबल का मतलब ये है कि इट इज गोइंग टू टॉलरेट द चेंज इन टेम्परेचर, इट इज गोइंग टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर। देन दैट enzyme that we are going to use is actually Taq polymerase. Taq polymerase बड़ा मजे का एंजाइम है। ये बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम वेंट्स, हाई टेम्परेचर हॉट स्प्रिंग्स में से ये अप टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक। This Taq polymerase जो है it is stable and the maximum temperatures that we see in the in vitro DNA analysis जो है वो तकरीबन up to 98 and 100 के अंदर अंदर। So Taq polymerase बहुत अच्छे से जो है it functions at this high temperature. ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी। अभी फिलहाल मैं आपको कुछ भी नहीं बता रही हूँ इसके प्रोसीजर के बारे में, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको मैं थ्रो करूंगी। एंड ऑफ द लेक्चर में आई विल आंसर द क्वेश्चंस आल्सो, बट यू विल हैव सम टाइम टू थिंक ओवर दोस क्वेश्चंस। अच्छा, Taq polymerase हो गया। देखें कौन कौन सी चीजें हैं ये देखिए। सबसे पहले आपने कोई भी प्रोसीजर लिखना है, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट प्रोसीजर। डीएनए सैंपल है, ओके। प्राइमर्स हैं, ओके। टेम्पलेट है, ठीक हो गई बात। डीएनटीपीज हैं, ओके। डीएनटीपीज हैं, राइट। टर्मिनेशन मेथड है, इसको हम टर्मिनेशन मेथड कहते हैं, चेन टर्मिनेशन मेथड बिकॉज ऑफ डीएनटीपीज। फिर हमारे पास क्या है? हमारे पास Taq polymerase है। Taq polymerase हो गया। अब उसके बाद ये तो हो गया मेन प्रोसीजर, ठीक है, जो आपका मेन सेंगर मेथड का प्रोसीजर है उसमें बेसिक कंपोनेंट्स हमारे पास ये हैं। इसके बाद अब ये देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है? सबसे पहले तो हमने वी आर गोइंग टू कलेक्ट दिस अननोन डीएनए स्पेसिमेन। ठीक है, वी आर गोइंग टू कलेक्ट द स्पेसिमेन ऑफ डीएनए। मे बी कोई बाल का पीस है, मे बी किसी के नेल्स में किसी का फ्लैश है, मे बी अ ड्रॉप ऑफ ब्लड फ्रॉम अ क्राइम सीन, कुछ भी है। हमने स्पेसिमेन को कलेक्ट कर लिया। दूसरे पे जो है ना स्टेप पे क्या करना है? हमने उस स्पेसिमेन को एम्पलीफाई करना है।
एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है कि उसका नंबर इंक्रीज करना है। अब मैं आपको बता रही हूँ इस प्रोसीजर के स्टेप्स। मैंने आपको पहले बताया जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अब आपको मैं बता रही हूँ इसके स्टेप्स। एम्पलीफाई करना है, एम्पलीफाई कैसे करेंगे वो एक और प्रोसीजर है, इफ यू पीपल वांट वो भी मैं बल्कि मैं वो भी कवर कर लूंगी। वी विल एम्पलीफाई इट बाय द पीसीआर मेथड। ठीक है, पीसीआर से ये है कि इन जस्ट अ शॉर्ट फाइल यू कैन गेट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ द रिक्वायर्ड स्पेसिमेन। ठीक है, अब पीसीआर के बाद वी विल एंटर दिस अवर एम्पलीफाइड स्पेसिमेन इनटू द डीएनए सीक्वेंसिंग एंड द प्रोसेस दैट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर इज द सेंगर मेथड। ठीक है, सेंगर मेथड डिस्कस कर रहे हैं। अब क्या होगा, एम्पलीफिकेशन हो गई पीसीआर मेथड से, अब हमने उसको सेंगर मेथड के अंदर डाल दिया। सेंगर मेथड के अंदर जब हम डालते हैं तो द फर्स्ट स्टेप इज डीनेचरिंग। अब हम अगले पीरियड में, अगले लेक्चर में इसको देखेंगे कि डीनेचरिंग क्या, डीनेचरिंग है। डीनेचरिंग के बाद अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप इसकी प्राइमिंग है या फिर हम कहते हैं कि उसकी टैगिंग है। ठीक है, प्राइमिंग हो गई, टैगिंग हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है उसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें अच्छा यहाँ पर एक चीज मिस होगी बेटा, यहाँ पर आपके पास 4 डिफरेंट ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, जिनको हम अलग से लेबल करते हैं, वो भी आपके रिक्वायरमेंट्स का कंपनी। अब टैगिंग हो गई। अब टैगिंग के बाद क्या हो गया, टैगिंग के बाद हमने क्या करना है, टैगिंग के बाद अब हमने इनको जो है वो ट्यूब्स के अंदर हमने उसको सारे adding components to the specific tubes. ठीक है, we are going to add the components together and after the components are going to be added together हमने फिर replication process को start करते हैं। रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट किया, उसके बाद क्या हो गया, रेप्लिकेशन प्रोसेस को जब हमने स्टार्ट कर दिया है, रेप्लिकेशन वी आर गोइंग टू अलाउ द रेप्लिकेशन प्रोसेस टू रन फॉर सम टाइम। आफ्टर दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आफ्टर दैट हमने अब वी हैव टू सेपरेट दीज replicated materials by a process which is called gel electrophoresis। gel electrophoresis से हमने इनको सेपरेट किया एंड देन आखिर में उसके बाद हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू रीड द सीक्वेंस फ्रॉम द जेल। ये सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को आई विल ट्राई कि आप लोगों के लिए मैं इसको आसान बना सकूं। दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन। सी यू पीपल नेक्स्ट टाइम and hope that you people stay safe and sound. Okay beta, Allah Hafiz.